Hello everyone and we welcome you all to the prep board. So thank you so much for coming back, and today is the day of awards and honors. So this is the 11th video of GK Marathon series, and today we will discuss very important questions of award and honors. So आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Let's move ahead. ऑनलाइन वर्कशॉप इज गोइंग ऑन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप बिकॉज टिस्नेट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स का रिवीजन यहाँ पे हो रहा है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप तो आप इन बिलो नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप कंसिस्टिंग ऑफ मॉक्स ऑल्सो, जीके क्वेश्चन बैंक, और इसमें 24/7 एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरी को हम आंसर करते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप. Moreover, we have also bring this mock booster series specially designed for test. So यहाँ पे आपको मिलेंगे 5 mocks which will definitely help you in your preparation for TestNet 2022. So if you want to register, you can call on below numbers. So आइए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर का. Which of the following superstar have won दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2021? यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में कौन से सुपरस्टार ने विन किया है? ऑप्शंस है धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत या फिर अक्षय कुमार. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज रजनीकांत. रजनीकांत ने ये पर्टिकुलर अवार्ड ही हैज वन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Let's move ahead. Discuss question 2. Which of the following has won Aryabhatta Award by Astronautical Society of India? यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल अथॉरिटी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जो आर्यभट्ट अवार्ड है, who has won this award? We have options of K. Sivan, सतीश रेड्डी, नामवी नारायण या फिर CNR राव. So the correct option for this is Satish Reddy. It is the correct answer. Satish Reddy has won this particular very prestigious award. So you can note the answer. Now this is again a very important question. Name the book which won International Booker Prize in 2021. कि कौन सी बुक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 में जीता है? So we'll have 4 options now. All at night all blood is black, option number 1. In memory of memory, option number 2. The war of the poor, and the fourth option is when we cease to understand. So the correct option for this is at night all blood is black. So this book has won International Booker Prize award. You can note the particular answer. Now the next question is who has won Nobel Prize in Literature in 2021? 2021 में नोबल प्राइज इन लिटरेचर किसने जीता है? So we have options of Maria Ressa, Peter Handke, Abdul Razak Gurnah or Giorgio Parisi. So the correct option for this is Abdul Razak Gurnah. This is the correct answer. You can note this. आगे बढ़ते हैं. नोबल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो इसके ऑप्शंस है हमारे पास 1958, 68, 78 या फिर 88. So Nobel Prize of Economics was started in 1968. So this is a very important question because economics का पूरे वर्ल्ड में दिया जाने वाला this is the most prestigious award for economics. So you can note the answer, that is 1968. Let's move ahead. Discuss question 6. मैक्सेसे अवार्ड is given by which country? यानी कि कौन सी कंट्री है जो मैक्सेसे अवार्ड देती है? So we have options of USA, Russia, Canada or Philippines. So the correct option for this is Philippines. You can note this particular answer. Let's move ahead. So the sport coaches हैं उन वो कौन से अवार्ड उन्हें दिया जाता है स्पोर्ट कोचेस को? We have options of ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार. So the correct option for this is द्रोणाचार्य अवार्ड. जो स्पोर्ट कोचेस होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है. So you can note this particular answer. Now the next question is कबीर पुरस्कार is associated with which field? यानी कि जो कबीर पुरस्कार है ये कौन सी फील्ड में काम करने वालों को दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास में स्कल्पचर, कल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी और हिंदी लिटरेचर. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रमोशन ऑफ कम्युनल हार्मनी. सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर आंसर. लेट्स मूव अहेड. नोबेल प्राइज इज गिवन बाय विच कंट्री? यानी कि नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री इज गिवन बाय दैट? वी हैव ऑप्शंस ऑफ ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन और रशिया. So the correct option for this is Sweden. A Nobel Prize is given by Sweden. You can note this answer. Let's go ahead. Who was the winner of Wimbledon tournament in 2021? यानी कि 2021 में जो विंबलडन टूर्नामेंट हुआ था which is generally played in London. लंदन में खेला जाता है. So इसका विनर कौन था?
वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंस कैटेगरी. सो हमारे पास ऑप्शन है रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नदाल और एंडी मरे. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज नोवाक जोकोविच. So he has won Wimbledon tournament in 2021. Let's move ahead and discuss next question. Who among the following won the Bharat Ratna award before becoming the president of India? यानी कि भारत का प्रेसिडेंट बनने से पहले किसको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा और जाकिर हुसैन. So the correct option for this is Zakir Hussain. So this is a very important award because Bharat Ratna is one of the most prestigious award in India. So this is again a very important question. You can mark this question as important. So Mr. Zakir Hussain has won this particular award. You can note this particular answer. And let's move ahead. Who was the winner of Swami Vivekanand Karma Yogi Award in 2021? तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड किसको मिला था 2021 में? ऑप्शन है स्वामी चित्तरंजन देबबर्मा, जादव पयंग, रतन टाटा और नन ऑफ दीस. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज स्वामी चित्तरंजन देबबर्मा. ही हैज वन दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2021. सो अगर आपको हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि आपके फ्रेंड्स और जो भी लोग आपके जानने वाले हैं दे कैन इन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दिस वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ताकि आगे आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो यू कैन गेट करेक्ट नोटिफिकेशन अबाउट दोस पर्टिकुलर वीडियोस. तो प्लीज सब्सक्राइब. लेट्स मूव अहेड. स्वाधीनता पुरस्कार इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री? यानी स्वाधीनता पुरस्कार जो है वो कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? So we have options of Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka और नेपाल. So the correct option for this is Bangladesh. So the स्वाधीनता पुरस्कार जो है वो बांग्लादेश का highest award है. You can note the answer. In which year was Pulitzer Prize established? यानी कि Pulitzer Prize जो था वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है? ऑप्शन है 1916, 1917, 1918 और 1919. So the correct option for this is 1918. So Pulitzer Prize जो है वो 1918 में स्टार्ट हुआ है. You can note the answer. Which was the first Indian movie nominated for Oscar? So again you can note this as a very very important question for TISNET as well as CMET कि ऑस्कर में कौन सी इंडियन पहली मूवी थी जो नॉमिनेट हुई थी? ऑप्शन है आलम आरा, मदर इंडिया, मुगले आजम और चेतक. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज मदर इंडिया. मदर इंडिया वाज द फर्स्ट मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर. यू कैन नोट द आंसर. Who was the first recipient of दादा साहिब फाल्के अवार्ड? यानी कि दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वो पहली बार किसे मिला था? सो ऑप्शन है पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, कन्नन देवी या फिर पंकज मुलिक. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज देविका रानी. शी हैज वन दिस prestigious award. You can note the answer. Highest gallantry award in India. So again students, this can be one of the most important question in this video कि highest gallantry award इंडिया में कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास वीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और परम सेवा मेडल. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज परमवीर चक्र. दिस इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया एंड दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज परमवीर चक्र इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑफ कोर्स हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड तो है ही इंडिया में. सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव अहेड. Who was the first Indian to receive Nobel Prize? So again this is a very good question. कि फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज? ऑप्शन है हमारे पास में मदर टेरेसा, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर और सरोजनी नायडू. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज रविन्द्रनाथ टैगोर. सो ही हैज वन फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इंडिया. यू कैन नोट दिस आंसर. आगे बढ़ते हैं. विच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? यानी कि इनमें से कौन सा अवार्ड एग्रीकल्चर फील्ड के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है भटनागर अवार्ड, धनवंतरी अवार्ड, कलिंगा अवार्ड और बुरलॉग अवार्ड. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज बुरलॉग अवार्ड. यू कैन नोट द नंबर 20 डिस्कस करते हैं. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? सो हमारे पास ऑप्शंस हैं अनिल कपूर, भानु अथैया, AR रहमान और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज भानु अथैया. यू कैन नोट दिस आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज गिवन टू होम? यानी कि जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो किसे मिला था? सो वी हैव ऑप्शंस ऑफ सुनील गावस्कर, विश्वनाथ आनंद, पुलेला गोपीचंद और धनराज पिल्ले. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज विश्वनाथन आनंद. यानी कि जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो विश्वनाथन आनंद को मिला था. सो यू कैन नोट दिस पर्टिकुलर आंसर. लेट्स मूव अहेड.
Who has won लोकमान्य तिलक अवार्ड इन 2021? 2021 में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला था? हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, साइरस पूनावाला, नरेंद्र मोदी, संजय सचदेवा और आधार पूनावाला. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मिस्टर Cyrus Poonawalla. He has won this very very prestigious award. So you can note the answer. BC Roy Award is given in which field? ये जो BC Roy Award है वो कौन सी फील्ड में अच्छा काम करने पे दिया जाता है? ऑप्शन है म्यूजिक, लिटरेचर, मेडिसिन या एनवायरमेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज medicine. This award is given in the field of medicine. You can note it. Lata Mangeshkar, who died recently, has won Bharat Ratna in which year? So ये current अफेयर से रिलेटेड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लता मंगेशकर जो इंडिया की बहुत ही फेमस सिंगर थी, सो एट द एज ऑफ 92 शी हैज रिसेंटली पास्ड अवे. सो उन्हें भारत रत्न कौन से ईयर में मिला था? ऑप्शन है 1991, 2001, 2011 और 2015. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 2001. लता मंगेशकर जी को भारत रत्न 2001 में मिला था. Let's move ahead and discuss last question for today. Who is the only Indian sports person to have won Laureus World Sports Award? यानी कि Laureus World Sports Award कौन से इंडियन को मिला था? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सचिन तेंदुलकर. सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर विद दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that you can get access to all the important upcoming videos. And moreover, you can contact us on these below numbers. You can like our Facebook page and you can visit our website for more further details regarding all the courses which are being offered by the Prep Board. So we wish all the best to all our students.